Hi guys, I'm Rishali. Welcome to my channel, Your Lit Guru. Okay, so firstly, I want all of you to just comprehend the meaning of the name of my channel. It says Your Lit Guru. Okay, I have put in a lot of time creating the name, so I really want you to understand its meaning. Moving on, let's just talk about why I have created this channel. Okay, so this channel will basically cater to all the students who are related to the field of English literature. But specifically, it will focus on the students who are aiming to crack MA English entrance exams. Okay, so this is the very first video of my channel, and it is going to be all about the syllabus that you need to cover in order to successfully clear your MA English entrance exams. Okay, so now I will be switching to Hindi. Actually, I will be using English or Hindi depending upon how easy I find it to explain a particular concept. Okay, so the first topic that you need to thoroughly prepare is called the periods of British English literature. ठीक है, इसमें बहुत सारे periods हैं. It starts with Anglo-Saxon period, फिर Middle English period आता है, and Middle English period तीन सब periods में divided है. Okay, to make its understanding a little bit easier for the students. So पहला है उस category में before Chaucer, फिर है the age of Chaucer, and then after Chaucer. ठीक है. Moving on, the next stage is the Renaissance. ठीक है. And Renaissance is also known as the early modern period. Early modern period. Remember this. This is important. And it is divided into Elizabethan age. Okay. Then you have Jacobean age. Then comes the Caroline age, and finally the Puritan interregnum, which is also known as Commonwealth period. Okay, then comes the Neoclassical age, which is further divided into Restoration age, Augustan age, and the age of Johnson. Then we have the Romantic age, then the Victorian, and finally we enter the 20th century. And 20th century is divided into a lot of periods. Okay, there's Georgian, Edwardian, depending upon the name of the king who was ruling during those times. And it is also known as the modern age, okay, and the postmodern age. So these are the periods that you need to cover thoroughly. Then the second thing that you have to cover is the periods of Indian English literature, okay, literature written in English language by Indians. Then we have to thoroughly cover American literature. Very important. Okay, उसके भी periods हमें सारे करने हैं अच्छे से. And finally, the most important chunk जिससे सारे passages आते हैं, जिससे सारे application based questions आते हैं, वो है literary criticism and theory. Very important. बहुत सारे हैं, पूरी list है, and मैं ऐसे याद करके बताऊंगी तो टाइम लग जाएगा. सो अलाउ मी टू रीड इट आउट फॉर यू. ठीक है, तो अपनी डायरी लाती हूँ, मैं फिर रीड कर देती हूँ. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग. फर्स्ट दैट यू हैव टू कवर इज द क्लासिकल क्रिटिसिज्म. सो क्लासिकल क्रिटिसिज्म में प्लेटो करना है, एरिस्टोटल करना है, एंड सीरो लॉन्गिनस की थ्योरी ऑन सबलाइन करनी है. दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर मास्टर्स का एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. बाद में देखेंगे यूजीसी नेट वगैरह के लिए. उसके लिए ऑब्वियसली और भी ज़्यादा डिटेल में करना पड़ता है, बट अभी हम बाहर नहीं जा रहे, अभी हम मास्टर्स तक ही रहते हैं. उसका एंट्रेंस एग्जाम हमें क्लियर करना है. ठीक है, सो सीधा फिर हम न्यू क्लासिकल पीरियड में आ जाते हैं. न्यू क्लासिकल पीरियड में जितने भी क्लासिकल लिटरेरी ट्रेंड्स थे ना, वो फॉलो होते थे. ठीक है, सॉरी मैं कैमरा से उधर देखने लगी थी. हाँ, वो फॉलो होते थे. सो उसमें what you have to study is basically the neoclassical criticism, then romantic criticism, and फिर एक पूरी सेंचुरी के बाद न्यू क्रिटिसिज्म आता है जो अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू होता है. उसमें यू हैव टू कवर obviously something called new criticism, then Russian formalism, German phenomenologists, reader response theory. उसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चंक जो हमारे सिलेबस में भी होता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट मॉडर्निज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म,
queer theory, Marxist criticism, new historicism, and cultural materialism important. All of these are important. Post-colonial criticism, stylistics, narratology, eco-criticism, and Indian literary criticism is also important, जिसमें रसा थ्योरी है and कुछ और भी important हमारे राइटर्स हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी. मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. अभी सिलेबस है तो मैं बस उतना ही बता रही हूँ. सो दिस इज द नेक्स्ट मेजर चंक. बहुत है थ्योरी. नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, नेक्स्ट आपको सारे फेमस वर्क्स, ठीक है, जो इंग्लिश में लिखे गए हैं या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं बट लिखे उन लोगों ने हैं जो नेटिव नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. हमने कर लिया इंडियन वाला तो हमने देख लिया. उसके अलावा हमारे पास और भी है. सो वी हैव रशियन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, आयरिश लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, न्यूजीलैंड literature, literature from New Zealand basically, Anglo-African literature, Austrian literature, Italian literature, Peruvian literature, Norwegian literature, and Latin American literature. ठीक है. Now इसमें पूरी हिस्ट्रीज नहीं करनी है लिटरेचर की, सिर्फ वो राइटर्स जो वेल रिसीव्ड हैं, ठीक है, जिनके वर्क्स बहुत ज़्यादा फेमस है, आपके सिलेबस के पार्ट है, या फिर वो राइटर्स जो अवार्ड, जिनको अवार्ड्स मिले, नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, मैन बुकर्स प्राइज, ठीक है. सो पूरी तुम्हें अच्छे से लिस्ट मिल जाएगी विकिपीडिया पे भी एंड गूगल पे. बहुत इन्फॉर्मेशन होती है नोट्स बनाने के लिए. सो जो भी अवार्ड विनर्स रहे हैं, हर साल एक ही होता है हर अवार्ड की कैटेगरी में, सो उनकी लिस्ट बनानी है, वो याद करने हैं. सो दैट इज अनदर पोर्शन यू हैव टू कवर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो इसी में से आते हैं. सो यू शुड नो. Then the next thing you have to do is linguistics. Linguistics basically क्या होती है ना, linguistics scientific study of language है, and you are preparing to become a master of English literature. तो language के components क्या है, language बनी कैसे, ये अच्छे से पता होना ज़रूरी है. मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कितना important हो जाता है, basics पता होने कितने important हो जाते हैं. अगर आप इसी फील्ड में या किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, so you have to be thorough with the basics. As simple as that. ठीक है. सो लिंग्विस्टिक्स इंपॉर्टेंट है ना, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट ऑब्वियसली बेसिक्स पता होने चाहिए. मॉर्फोलॉजी क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स क्या होता है, एंड वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस क्या होते हैं, एंड बाकी जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो एक्सप्लेन करूंगी, मैं सब अभी नहीं बता सकती. हाँ. देन लिटरेरी डिवाइसेस वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कोई भी नैरेटिव पढ़ते हैं, आप कोई भी पोएम पढ़ते हैं, तो a lot of devices are being used like imagery, first person narrator, second person narrator, epic और fable हो गया, मतलब जितने भी literary devices होते हैं, you can understand, उनके बारे में पता होना चाहिए. metaphor, alliteration, all that. सो ये तुम्हारी मेजर चंक्स है. ये तो सिलेबस है जो करना ही करना, बिकॉज लिटरेचर प्रिपेयर करो, लैंग्वेज प्रिपेयर करो, उसका एंट्रेंस एग्जाम देना एंड मास्टर बनने के लिए एग्जाम देना. मास्टर्स में एडमिशन चाहिए ना, तो इतना तो पता होना चाहिए. अब मैं बोल रही हूँ तो लग रहा होगा कि कितना सारा है यार, मतलब इतना सारा कैसे पढ़ेंगे. सो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर. अगर आप सिंसियरली एंड सीरियसली प्रिपरेशन करोगे तो इट विल टेक यू अराउंड 6 months का टाइम. एंड 6 months का जो टाइम होगा ना, इसमें आपको आपकी 3 थोरो रिविजन्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है. सो 3 months आपको सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ के सारे कॉन्सेप्ट समझने में, एंड जो बाकी 3 month है वो आपकी रिविजन में जाएंगे. सो 6 months पहले तो तैयारी शुरू कर दो, बट आई विल सजेस्ट जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हो करना, बिकॉज मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन इतनी जल्दी नहीं शुरू करी थी, बट मेरी हैबिट है हमेशा से कि मैं बेसिक्स अच्छे से करती हूँ. बाकी मार्क्स आए ना आए वो अलग बात होती है. तो मैं शायद आंसर लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं करती होंगी, बट मैं बेसिक्स हमेशा से बहुत अच्छे करती हूँ. एंड ये मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए, क्योंकि मेरे बेसिक्स अच्छे से थे. तो मेरे पास जो भी 2-3 महीने थे, मैंने उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करी, लाइक अच्छे से काफ़ी. एंड स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था, पर स्ट्रेस में भी हो गई प्रिपरेशन, और अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी रैंक आ गई, पसंद का कॉलेज भी मिल गया, सब हो गया. सो द पॉइंट इज कि बेसिक्स अच्छे से करना है.
नाउ इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हैक कह सकते हैं प्रिपरेशन में, मतलब जो बेसिकली आपके पूरे प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे देगा, दैट इज कि आपका जो भी टारगेट यूनिवर्सिटी है ना, उसका बैचलर्स का एंड उसका मास्टर्स का सिलेबस देखो, ठीक है। उसमें जो भी पेपर्स है उनके बारे में पढ़ो, ठीक है। जनरली जो सिलेबस होता है उसमें डिस्क्राइब्ड होता है, अच्छे से डिस्क्राइब्ड होता है ऑब्जेक्टिव क्या है उस पेपर का, ठीक है। क्या की टर्म्स है, क्या बैकग्राउंड आपको कवर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, कौन से फिलोसफिकल ट्रेंड्स थे उस टाइम पे जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे उस टाइम पे लोगों को, ठीक है। सो वो अच्छे से पढ़ो। मैं आगे की वीडियोस में ये सब एक्सप्लेन करूंगी, पूरे पीरियड एक्सप्लेन करूंगी, सब कुछ बताऊंगी। बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम एंड अगर आपको नेक्स्ट 2 months में एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत और चाहिए, सो यू कैन डू दिस, ठीक है। जो 2 सिलेबस है मास्टर्स के एंड बैचलर्स के, उनको अच्छे से पी जाओ, ठीक है। सो जितने भी राइटर्स हैं सिलेबस में, उन राइटर्स के आपको और भी वर्क्स के नाम पता होने चाहिए, उनके मोस्ट फेमस वर्क्स के नाम पता होने चाहिए, उनका नॉन द प्लूम या फिर स्यूडोनिम क्या है ये पता होना चाहिए। उनके वर्क्स में मेजरली क्या थीम्स होती है, उनके थीमेटिक कंसर्न्स क्या होते हैं, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सब, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड होता है हमेशा। समझ लो कि वो अप्लाई कैसे होता है किसी पर्टिकुलर वर्क में, बट उसकी डेफिनेशन भी याद कर लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस में MCQs आते हैं, तो आपको वही डेफिनेशंस आती हैं शायद, एंड यू हैव टू जस्ट चूज कि कौन सा बेस्ट रहेगा। सो ये भी कर सकते हो। एंड एक बुक मैं अभी बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नहीं बता रही, दैट इज M.H. Abrams ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ओके। द वर्जन आई हैव, द एडिशन आई हैव इज 11th one। आपको जो भी मिल रहा है अवेलेबल हो आप ऑर्डर कर लो, खरीद लो। बट अगर वो भी अच्छे से कर लोगे ना, बट उसको भी एटलीस्ट 5 times करना जरूरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो आपको समझ ही आता है कि बुक में है क्या, सेकेंड टाइम में आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हो, थर्ड टाइम में वो दिमाग में थोड़ा बहुत बैठता है, डाउट्स आते हैं तो आप पूछते हो या फिर और इंटरनेट पे सोर्सेस देखते हो, फिर समझने की कोशिश करते हो। फोर्थ रीडिंग में वो दिमाग में बैठ जाता है, एंड फिफ्थ रीडिंग ऐसे होती है, you just skip through the pages, skim through the pages, आप skimming करते हो and you're ready। बट हाँ, एंट्रेंस अगर अच्छे से देना है तो 6 months पहले प्रिपरेशन रखो। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो नेक्स्ट 2 months में स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, एंड 2 months सिलेबस देख लो। अगर आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है तो वो देख लो, मैं कोचिंग देती हूँ तो आप मेरे को भी आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे ईमेल आईडी है योरलिट गुरु करके, सो यू कैन सेंड मी एन ईमेल एंड यू कैन अरेंज अ डेमो क्लास एंड वी कैन देन, वो बात की बात है। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हो, सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपने सेमेस्टर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करके अच्छी SGPA लाओ, ताकि आपकी CGPA ज़्यादा से ज़्यादा हो एंड आपका मेरिट के थ्रू भी एडमिशन थोड़ा सा पक्का हो जाए। बट सेइंग दैट, एंट्रेंस की प्रिपरेशन तब भी करो अगर आपको फ्यूचर में स्टडीज करनी ही है, इसी लाइन में ही जाना है, इंग्लिश लिटरेचर में ही जाना है। सो एंट्रेंस की प्रिपरेशन से बेसिकली क्या होता है कि दैट यू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो जब आपको UGC नेट या फिर आपको आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा ना, तो आपकी जो नॉलेज होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है सब्जेक्ट को लेके, दैट आप यू विल एस द एग्जाम, ट्रस्ट मी। सो एंट्रेंस की प्रिपरेशन चाहे आपका मेरिट से भी हो रहा हो तब भी करो, चाहे खुद से ही करो, कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन करो, जो भी मैं बता रही हूँ वो पढ़ो। बिकॉज एंट्रेंस, क्योंकि मास्टर्स के लेवल पे ना आपको डिस्कशंस ज़्यादा करने होता है, वो स्पून फीडिंग वाला ट्रेंड नहीं होता है। वैसे कॉलेज में भी इतना नहीं होता है, बट अगर आप क्लासेस जाते हो, प्रोफेसर स्टिल प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ मटेरियल। मास्टर्स में भी प्रोवाइड करते, बट दे ऑल्सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि आप उनको लगता है कि आप उसी बैकग्राउंड से आए हो तो यू शुड हैव नॉलेज। अगर आप एंट्रेंस से आए हो तो ऑब्वियसली आपको नॉलेज होगी, आपने तभी क्लियर करा। ऑल्सो कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो मैंने शायद बताए नहीं है, बट मैं वो लिस्ट में इंक्लूड कर दूंगी एंड मैंने किए हैं। सो डू मेक अ नोट, उनके बारे में भी पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाऊंगी, अब तक तो बन गया होगा, हाँ बन चुका है, योरलिट गुरु करके, तो आप मुझे उधर फॉलो कर सकते हो। बिकॉज उधर में बहुत सारे हैक्स एंड उधर में बहुत सारे
फैक्चुअल क्वेश्चंस पोस्ट करती रहूँगी, ठीक है, एंड वीडियोस डालती रहूँगी डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है. सो पूरे लाइक एंट्रेंस के प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपको किसी ने बेसिक्स ऑलरेडी समझा दी है. अगर आपको बेसिक्स आते हैं ना तो आप कभी भूलोगे नहीं. एंड जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होता है वो हमेशा बेसिक एज अ फाउंडेशन यूज होता है उसमें, ठीक है. अगर आपको बेसिक से नहीं पता तो आप कॉन्सेप्ट पे चाहे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड लेवल्स पे पहुंच जाओ, यहाँ वहाँ इतना ऊपर, बेसिक नहीं आता तो भूल जाओगे, गलत ही करके आओ, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन कभी सही होगी ही नहीं, कभी भी नहीं. सो बेसिक समझना जरूरी होता है. आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगी. मैं वहाँ पे वीडियोस जब भी न्यू अपलोड होगी ऑब्वियसली यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे. बट मैं वहाँ पे भी वहाँ पे भी पोस्ट करती रहूँगी कि ये वीडियो अपलोड हो गई, ठीक है. वहाँ पे मैं काफ़ी फन वीडियोस भी डालूंगी लिटरेचर को लेके, तो इसलिए भी वो फॉलो कर सकते हो. या सो यू कैन डू ऑल ऑफ दिस. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कोचिंग तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ. एंड मैं कोई भी एनरोल करे उससे पहले आई मेक श्योर कि मेरा जो वे है ना पढ़ाने का एक बार वो समझ आ जाए. तो मैं 2 डेमो क्लासेस देती हूँ विच आर टोटली फ्री. एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन ज्वाइन, इफ़ यू डोंट लाइक इट इट्स फाइन. आप मेरे वीडियोज ही फॉलो करते रहो, हेल्प लेते रहो. सो प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए, क्योंकि अभी तो मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम शूट करा तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत होगी, आई नो दैट. बट एज लॉन्ग एज मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है, जो मेरा इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है कि मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपको हेल्प करना है, मेरे चैनल का पर्पस सर्व होता रहेगा. एंड आई विल बी क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद लाइक जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी इंप्रूवमेंट होती रहेगी. सो दैट इज अनदर थिंग. सो आई एम रुशाली शर्मा, ओके, एंड I will sort of keep you posted YouTube पे and Instagram पे. So please follow me there and let me know how you liked the video and if it was helpful or not. हाँ, and syllabus में जो भी miss हो गया तो मैं next video में डाल दूँगी. And anyhow I'm going to teach each and everything on the channel. So don't worry. वो तब आपको पता चल ही जाएगा. But जो भी important है वो मैं साथ साथ बताती रहूँगी. And yeah, so bye. Take care of yourselves and stay positive.